ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਮਯੋਗੀ ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰਗ, ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਯੁਗਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ, ਕੁਸਮ, कृष्ण गोयल, अमृतपाल जी, पुष्प कमल, पूजा, रश्मि, विकास बांसल, शालू, गगन, सुधीर, निशा, उचित, सचित, तानिया, तलीशा, नव्याना ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री हेमराज जी का जन्म 10 फरवरी 1933 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸਾਥ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ, ਸਚਿਤ, ਤਾਨੀਆ, ਦਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ, ਦੂਜੀ ਮੌਤ, ਤੀਸਰਾ ਲਾਭ, ਚੌਥਾ ਹਾਨੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਯਸ਼, ਛਠਾ ਅਪਯਸ਼। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਨਮ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਕੈਸੀ ਮਿਲੇ? ਕੈਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ 2 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। और केड़ा वेला सी? बोलो। सुबह अमृत वेले 5:15 बजे तुम बैठे इन्हें विद्वान कहते हैं जिस बंदे के प्राण सवेरे 3 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक निकलन, समझ लेना वो बंदा वैकुंठ लोक गया। कितने गया? वैकुंठ लोक। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसे कहते कितने जाता है?
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਾਠ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਹੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ रघुवर पुर जाहि, जहाँ जाए हर भक्त कहाई, जहाँ जाए हर भक्त कहाई। अंत काल रघुवर पुर जाहि, जहाँ जाए हर भक्त कहाई, जहाँ जाए हर भक्त कहाई, जहाँ जाए हर भक्त कहाई। कहते ने वो बंदा अंत वेले जो प्राण छड्डदा वो भगवान के घर में जाता। ऐसे भी भगत बने लाला हिमराज जी, और जब चौड़ा छड्डिया सोमे का समय उन्होंने बेटे केवल गर्ग जी जिन्होंने सालों मंडी काला वाले को बुलाया, कितना वड्डा उन्होंने दिन, कितनी वड्डी उन्होंने भावना। मेरे बंदे वीर आंटी शर्मा जी को काला वाली उन्होंने फोन किया, बंद जी बाओ लाला हेमराज जी गर्ग जी इस संसार को छड्ड के उस परमात्मा के चरणों के जा चुके हैं, तुसीं टाइम कढो उन्होंने लिए कथा वार्ता करो। मेरे बंदे वीर भक्ति शर्मा जी ने आज परिवारिक कोई काम से उन्होंने समर्थता जताई, कहते मैं नहीं आ सकता। बाबू जी ने सपुत्र उन्होंने बेनती की, नहीं तुसीं आप नहीं आ सकते, पर साडी इच्छा है कि बाबू जी ने नीवे सत्संग कोई करे थोड़े परिवार के विचों आके। मेरे बड़े वीर बंटी शर्मा जी ने मैंने पूछा कि केवल गर्ग जी का फोन आया है बडलाडे को, बाबू जी ने जोड़ा छड्डिया तुसीं जाना। वैसे भी मेरी तो कथा चल रही है, भागवत की कथा खोली है, कहते नहीं उन्होंने प्रार्थना की है कि भी तुसीं पहुंचना। मैं हामी भर ली, तैयार हो गया। सुबह जो चलन लगे कहते ने साढ़े उधर बसा को रोक दिता गया, कहते ने हड़ताल करके बसा नहीं चलणगियां। बाबू जी का दिल भी बहुत बड़ा से, पर कहते ने जिन्होंने जन्म दे के गए उन्होंने बेटे केवल गर्ग जी, इन्होंने मैं फोन मारिया कि बाबू जी साढ़े इतने बसा बंद है, बसा की हड़ताल हो रही है, बसा चल नहीं रही है, तुसीं दसो किवें करिए। कहते ने पंडित जी घबराओ ना, तुसीं गड्डी लेके आ जाओ, तुसीं कार कर लो, कार से आ जाओ। पहली बार कहता पंडित जी तुसीं पहुंचो, कितनी बड़ी भावना। कहते पंडित जी टाइम तो 1 तो 2 है, टाइम बोलो 1 तो 2 है, पर साडी इच्छा यह है कि तुसीं 12 बजे सत्संग शुरू कर दो। बैठे किसी ने बैठना नहीं 12 बजे। कहते ने पंडित जी साडी इच्छा है जितना ज़्यादा तो ज़्यादा सत्संग हो सके, जितना राम नाम की चर्चा हो जाए, जितने शब्द हो सकन उस मालिक को मिले। क्यों? छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तो पाप कमाई निश दिन, इस पेट भरन की खातिर तो पाप कमाई निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। ठीक है, कहते हैं 2 चीजें ऐसी ने कदे नहीं भरदियां, एक जीभा और एक पेट, खाली रहता हमेशा। संत कहते हैं बंदे के शरीर दे विच सब तो कीमती अंग जिहड़ा गर्ग साहब
कहते ने बंदे दे शरीर का सब तो कीमती पार्ट। कबीरदास ने पूछा अपने शिष्य के कोलों, कहते केड़ा दसो। सारे मौन हो गए, कोई नहीं दस सकता। कहते गुरु जी तुसी दसो बंदे के शरीर का महंगा पार्ट केड़ा है। कबीरदास जी बोले, कहते जिस तरह महंगी चीज को अंदर रखा जाता है उस तरह भगवान ने भी बंदे का महंगा पार्ट अंदर ही रखे, बाहर नहीं कढ़िया, अंदर ही है। केड़ा है? जीभा। जीभ जी है यह सब तो महंगा है बंदे का अंग। तुम देख लो कन्न बाहर, अखा बाहर, हथ बाहर, पैर बाहर, पर जीभा अंदर। जीभा को दो दो ताले लाए है। मुंह बंद करो, पहले दंद रोकते हैं फिर होठ रोक लेंगे। कीमती है, बहुत कीमती जीभ है। जिस दे नाल कहते ने जो जीभा मिलने तो बाद उस मालक के गुण नहीं गाता। कहते जो अपनी जीभा को राम नाम नहीं गाँदा, संत लिखते हैं अगले जन्म के परमात्मा को मेंढक बनाते हैं। मेंढक बनता, डड्डू बनता। कहते ने कन्न मिले है उस मालक की कथा नहीं सुनता, निंदा सुनता है, चुगली सुनता है, झूठ सुनता है, किसी की बुराई सुनता है, पर जिथे कथा होवे उतों उठ जाता है। की बनता है अगले जन्म में? संत कहते हैं सप बनता है। सप। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिहड़ा कन्ना तो कथा ना सुने अगले दिन बात भगवान को सप बना देते हैं। क्यों? कहते सप कोले अखा है पर कन्न नहीं है, पैर भी नहीं है। इस वास्ते पैर मिले है, कन्न मिले है, उस मालक के गुण का। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ढोंगड़िया। गर्ग साहब लिखते हैं कि दिन च 2 बारी रोटी खा लेना, दिने भी रोटी, राती भी रोटी, और हरदम रोटी रोटी। जे बनया तो नाम न जपया, तेरी किस्मत खोटी। सो भी लेना, रोटी भी खा लेना, पर भगवान का भजन नहीं करता। कहते ने कोई कर्मा वाली आत्मा होती है, साडे लाला हेमराज जी गर्ग साहब वर्गी, जो आत्मा दानी होती है, जो भजनानंदी होती है, वो महान आत्मा होती है। कहते ने महात्मा किहनूं कहते हैं? कहते ने आत्मा के नाल जे महाशब्द ला दिओ तो महात्मा बन जाता है। गर्ग साहब आत्मा के नाल महा ला दिओ, महात्मा बनता है। कहते जिहड़ा अपनी जिंदगी चाह के महान काम करे वो बंदा भले गृहस्थी होवे, कहते ने महात्मा क्या हो। उस मालक को कहना कि मैनू बड़ी उम्र मिले ना मिले, पर मैनू सेवा वाली उम्र मिले, दान वाली उम्र मिले, भजन वाली उम्र मिले। अपनी संस्कृति कितनी महान है, कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। कहते ने पूरे 16 श्राद्ध है, एक नहीं लाला जी 16 श्राद्ध है। 16 अपनी एडी बड़ी विस्तार वाली संस्कृति, एडी बड़ी परंपरा। सत्संग भी गंगा है तो इसमें लगा ले गोता, सत्संग भी गंगा है तो इसमें लगा ले, वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोता, वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोता। कौन छुड़ाएगा, कोई
न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया घड़िया। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग की यम तो पकड़ कर तुझको ले जाए बांध हथ कड़िया। यम तो पकड़ कर तुझको ले जाए बांध हथ कड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। क्यों? क्योंकि कहते हैं मां का कर्जा, मां के बारे तो बड़ी गल्लां करते हैं लोग, पर कहते हैं पिता का कर्जा भी, पिता का जीवन दे विच भी रोल छोटा नहीं है। केवल जी गर्ग साहब कहते हैं एक पिता की अख दे विच कहते हैं दो समय रोना निकलता है। एक पिता की अख दे विच दो समय आंसू आते हैं। कदों कहते पिता जो उसकी लड़की बेटी घरों रवाना होती, जो उसका ब्याह होता है। और दूसरा जो माली बन के अपने परिवार को पूरे पंजों बेटे परिवार के बच्चे जिन्होंने लायक बनाया गर्ग साहब ने। महापुरुष लिखते हैं इस जग विच फिर नहीं मिलना, इस जग विच फिर नहीं मिलना। तेरा प्यार पिता जी तो सारी उम्र सन कीता है। बड़ा प्यार पिता जी, इस जग विच फिर नहीं मिलना, इस जग विच फिर नहीं मिलना। तेरा प्यार पिता जी तो सारी उम्र सन कीता है। बड़ा प्यार पिता जी, बड़ा प्यार पिता जी। इस घर के बिच नहीं आउणी। केवल जी कहते तुसीं बैठे होवोगे घर दे विच, ऐ लगूगा कदे बाबू जी आवाज मारते हैं। जो मैं नाम लिखे तो केवल जी मैनू कहन लगे कहते बन जी रात 9:30 बजे लाला जी नाल बेटी की भी गल हुई, मेरी भी गल हुई। कई बार कहते हैं अपना फोन आता नहीं, पर अपन लगता फोन आया, घंटे नहीं आते पर महसूस होता है। एवं कुछ दिन तक केवल जी को लगूगा कि बाबू जी की आवाज आ रही है, फिर देखणगे लगा में दिल तक। इस घर के बिच नहीं आउणी तेरी आवाज पिता जी, तेरी आवाज पिता जी तो सारी उम्र सानू कीता। बड़ा प्यार पिता जी, बड़ा प्यार पिता जी, बड़ा प्यार पिता जी। इस जग विच फिर नहीं मिलना, इस जग विच फिर नहीं मिलना। तेरा प्यार पिता जी तो सारी उम्र सन कीता है। बड़ा प्यार पिता जी, बड़ा प्यार पिता जी। क्यों? पिता एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा रोल है, पिता एक ऐसा इंसान है। सारी दुनिया कहती है कि फलाना आदमी साढ़े तो अगे ना निकल जाए, क्या जी पैर खींचने की कोशिश करती है दुनिया, पर पिता एक ऐसा रोल है, पिता एक ऐसा महान व्यक्तित्व है, शख्स है जो पर्दे के पीछे रह के अपने बच्चों को हमेशा ही कहता है उसकी पूजा, उसका पाठ, उसका दान, चलते फिरते बंदगी यही है कि मेरे बच्चे मेरे तो भी अगे निकल गए, मेरे तो भी आगे निकल जा। ऐसी महान पुण्य आत्मा हाथों के नाल दान करके गई, अपनी कीमती जमीन, बहुत
कीमती जमीन उन्होंने बड़ी खुशी के नाल परोपकार के वास्ते दान की। लिखते भी है, कहते एक बंदा जो जन्म लेंदा है ना, 3 कर्जे उस बंदे से होंगे हैं, माता पिता का, भगवान का और समाज का कर्जा। कहते हैं माता पिता का कर्जा आप नेक रस्ते से चलीए ऐसे के नाल उतर जाता है। दूजा परमात्मा का कर्जा, उस मालक को हमेशा याद रखिए। और तीजा कर्जा जो समाज का कर्जा है, जिस आप रहने हैं, जिसने आपको सब कुछ दिता है, उसके नाल बन के समाज को नाले लेके चलिए। जिन्ने भी संस्थावां दे सी सब दे नाल जुड़ के चले। जदों उन्होंने जीवनी को देखा, केवल गर्ग जी कह लगे पंडित जी ज्यादा नहीं थे, उन्होंने जीवनी को 2 मिनट सुनो, बिल्कुल पता लग गया। कहते ने इतने तक कि कहते हैं जिंदगी के 3 पड़ाव है पंडित जी, 3 पड़ाव, बचपन, जवानी ते बुढ़ापा। बचपन, जवानी ते बुढ़ापा, हर पड़ाव के जरूरत है। कहते बचपन के मां की जरूरत है, जवानी के महात्मा की जरूरत है। बचपन को मां संभालती है, जवानी को महात्मा संभालते है, और बुढ़ापे को परमात्मा संभालते। ये तीनों ही कम करके जवानी के बाबा परमानंद जी के चरणों के उन्होंने लगन लगी। परमानंद जी के चरणों के उन्होंने अनुराग लग्या, शरधा जागी, और उन्होंने देखे रस्ते पे, दिखाए रस्ते पे, बिल्कुल जवानी के शुभ कर्मा के लगे। और लिखा भी है कि कहते हैं बचपन पढ़ाई में, जवानी कमाई में, और बुढ़ापा दवाई में जाता है। किसका? संसारी आदमी का। बचपन पढ़ाई, जवानी कमाई, तो बुढ़ापा दवाई दे विच। दवाई के डब्बे ला रखे घर के पहली बेदत है। पर लिखा भजन करने की उम्र केड़ी है? जवानी। तीर्थ करने की उम्र जवानी। दान करने की उम्र जवानी। अपने हाथी दान करके गए, लोगों को पिछों देना पैदा, पर बाबू जी वर्गी महान आत्मा जो अपने हाथों भी दान करके गए, समाज सेवा करके गए। और ऐसे तरह उन्होंने नेक संतान, केवल करके उन्होंने बच्चे, परिवार, बिल्कुल उन्होंने केवल गर्ग जी की धर्म पत्नी सरोज रानी, पौत्रे उचित संचित, बिल्कुल पूरे परिवार में श्रद्धा के नाल। जब मैं इतने मंच से बैठन लग्या, मैंने सब तो पहले गर्ग साहब ने प्रार्थना की, कहते नहीं पंडित जी इतने बाद बैठना है, पहले तुम खाना लेना। मैं क्या नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। कहते नहीं पंडित जी फिर साडा लगना नहीं, शराब चल रही है, ब्राह्मण देवता आए है, कहते पहले तुम ही लो। मेरे नाल बैठे है गोपाल जी, निवेदन किया, इन्होंने जाके पहले प्रसादे में। कहते ने जोड़ा है इंसान सब तो बड़े प्रेम और प्यार का, कहते ने भुखा होता है, सब चीज दुनिया के विच मिलती है, पर कहते ने है प्रेम की जरूरत भगवान को पाने के लिए। मैं गर्भ परिवार के वास्ते उस परम पिता परमात्मा को यही बेनती करते हुए, इस महान आत्मा को अज के बड़े पवित्र दिन श्री हनुमान जी के दिन, कहते हैं जो भगवान के नाम लैन का अनेक गुणा फल मिलता है। और लिखा भी उन्होंने कि संतां दे कोल ही दवाई है, राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। एडे बड़े दिन उन्होंने चरणों में प्रार्थना कि उस महान आत्मा को, पवित्र आत्मा को, दानी आत्मा को अपने चरणों में जगह देना, और उन्होंने संपूर्ण परिवार को भगवान बल बख्शे, इस दुख तो बाहर निकल सकन। पंडित जी बैठे हैं,
उन्होंने मैंने बेनती की सी 1 बजे तक तुसी सत्संग करना है, पर कुछ देर मैं ज़्यादा बोलिया, मैं क्षमा दा चाहूँगा। हम पंडित जी जिन्होंने पवित्र श्री गरुड़ पुराण जी की कथा की थी और आके कहते से एक अध्याय पिया है, पंडित जी बोले अगे दे मंच का संचालन पूजनीय पंडित जी करनगे। बोलो गंगा मैया के, बोलो बंके बिहारी लाल के जय। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वज्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तालिपुरुषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातं प्रयास्तभ्यां पयो गोष्ठीपयोजं नन्त्रकेपयोदापयस्पति प्रदर्शसन्तो मां विष्णोररात्मसि विष्णोशं धनोरसि विष्णोशं धनोरसि वैष्णवमेत्वा अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता वर्तो देवता बृहस्पतिर्यो देवता वरुणो देवता। ओम द्रोः शांति अंतरगो शांति पृथ्वी शांति रोग शांति रोग शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वों शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे सुख शांति भवतु। चढ़ा दे। ओम भूर्वशं गंधक द्वारा तलक लगा दो। गंधक द्वारा दराशिष्टम नित्यम पुष्टम करीषि हे श्रीं सर्वभूतानां तावोख्यं नमः। ओम भूर्वशं तलक चंदनं समर्पयामि। यहाँ भी लगाओ। श्री घट चंदनम तुभ्यं गंधाक्तं सुनेरं लेपनं सुषेकनं चंदनम प्रतिगयतामि। रख दो बस। इस कथा को सुन के बहुत मन प्रसन्न हुआ और सभी कथाओं का सभी पुराणों का सुनने का एक ही मतलब है। उस कथा में एक बहुत सुनार वशिष्ठ जी नाम के कथा सुनने आवे। पंडित जी रोज कथा करके जावे। उन्होंने ये मन में विचार आया कि आज हम देखते हैं कि कौन कौन कथा सुनता है और कौन कौन कथा नहीं सुनता है। तो वो मेला में दुकान लगाते थे सुनार जी। उन्होंने 2 मूर्ति बनाई। उन मूर्तियों का नाम रखा वशिष्ठ जी और दोनों मूर्ति एक ही नंबर की, एक ही गेज की और एक ही उनका दोनों का वजन। एक मूर्ति की कीमत रखी 500 रुपये और एक मूर्ति की रखी 50,000 रुपये। अब जो भी उसको खरीदने आवे ग्राहक कि इसमें क्या अंतर है, ये 500 रुपये की है, ये 50,000 रुपये की है। अब वो सुनार जो थे वो कहते कि महाराज आपने कथा सुनिए, इसका आप ही उत्तर बताओ। अब उसका उत्तर कोई नहीं दे पाए। कोई कान में उंगली करे, कोई हाथ में उंगली करे, कोई पाँव में, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक संत महात्मा आए, वो भी रोज कथा में जावे। उन्हें कहीं ना होए तो हम बस इनके पास बैठते, सुनार के पास 2 मिनट, ये रोज सत्संग में हमको मिलते। तो वो ये बात सब सुन रहे, तो उन्होंने कही कि इसका जवाब तो हम दे देंगे। बान की महाराज कथा तो ये भी रोज सुनते, बान सुनते तो हैं पर ये समझ नहीं रहे। बान की फिर बानों ने सूतली मंगाई और सूतली मंगा के उसमें बट पाया और बट पा के मूर्ति के कान में डाली और इधर कान में डाली, इधर कान में निकल गई। बान की महाराज ये आपकी मूर्ति है 500 रुपये की, और दूसरी के डाली वो अंदर चली गई कि महाराज ये आपकी 50,000 रुपये की। बान के महाराज यही फर्क है, इसमें और कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये कथा रोज सुनते पर ये अंदर ही नहीं डालते। इधर सुनी इधर निकाली, इधर सुनी इधर निकाली, इसीलिए इनकी कोई कीमत नहीं है महाराज। सबका निचोड़ उन्होंने एक ही निकाला है कि कलयुग केवल नामो आधारा, सुमरे सुमरे नरे उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ एक ही गुण है, बाकी सब अवगुण है इसके अंदर। इसके अंदर गुण क्या है? केवल नाम आधारा। आप कथा सुनो, भागवत सुनो, गीता सुनो, लेकिन जब तक नाम का आधार, नाम का आश्रय नहीं लोगे,
तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें यही सब ऋषि मुनि, तुलसीदास जी कितने मान ज्ञानी हुए, उन्होंने सब कथा का निचोड़ यही निकाला है, केवल नाम आधारा। और कलयुग में आप केवल भगवान की नाम से ही मुक्ति हो सकती है, और कोई मुक्ति नहीं है। और हम जो प्राण पढ़ रहे हैं, घर प्राण, ये एक ऐसा प्राण है, आदमी को मरने के बाद तो उसको मुक्ति दिलाता है, लेकिन अगर जीते जी इसका कोई श्रवण कर ले और इसको सुन ले तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। ये ऐसा गर्भ प्राण है, इसको जरूर सुनना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है कि ये मरने के बाद ही सुना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीते जी अगर एक बार भी इसका श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण निश्चित है। इसलिए समय के देखते हुए, टाइम इज ए मनी, समय ही धन है, समय बहुत हो चुका है, इसलिए हमने कथा भी बहुत छोटी रखी है। हम थोड़ी सी कथा कह के नहीं, फिर आरती करेंगे, उसके बाद पगड़ी की रस्म होगी, उसके बाद आपको विदाई होगी। तो भगवान कहते हैं, लास्ट का थोड़ा सा अध्याय है, भगवान श्री हरि बोले कि हे गरुड़ जी, मैंने सर्व और्धिक देह क्रिया की कथा सुना दी, और 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पितरों का यह परलोक और संबंधी कर्म मुक्त पुत्र की का मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। और नास्तिक व्यक्ति भी इस कथा को सुन लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। और जो माता पिता के मृत्यु होने पर गरुड़ प्राण को सुनता है और उनको सुनाता है, उसके माता पिता सभी मुक्त 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये गरुड़ पुत्र संतत्व वाला होना चाहिए, बहुत धार्मिक होना चाहिए, और जिसके गरुड़ प्राण से सुनता है या किसी को सुनाता है, वो विशोषक, मानसिक और कायिक और वाचिक 3 तरह के पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको पौत्र, परपौत्र और 7 पीढ़ी तक उसका वंश का विनाश नहीं होता है। ये गरुड़ों, वह 3 रणों से मुक्त हो जाता है, और अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ हो, इस कारण सभी प्रियतनों से गरुड़ प्राण को सुनने में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है, और सब दुखों का नष्ट हो जाते हैं, और पुण्यकारी पवित्र कथा सुनने को हमको मिलती है। हे गरुड़, सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला, मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता, क्षत्रिय, जमींदार, वैश्य, धनी, शूद्र, किसी भी जाति का हो, एक बार पवित्र होकर इस कथा का श्रवण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। और पहले गरुड़ प्राण की पूजा कर, वस्त्र अलंकार कर, गौदान दत्ता से साधार वाचिक ब्राह्मण का पूजन करके, और इस गरुड़ प्राण को जो सुनता है उसको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए, बहुत दुख की बात है। साढ़े लाला जी, हेमराज जी बहुत पुण्यात्मा थी, मैं बहुत समय से जानता थी, रोज गोवा जाते थे। मैं कई बार मुझे रास्ता में मिले, मैंने कि अब तुम बहुत बुजुर्ग हो गए और मत जाया करो, अब घर रहे हो। बाने की पंडित जी, घर मन नहीं लगता है। अगर घर रहता हूँ, बस स्टैंड पे और घर तक पैदल आते, किसी को आज तक कोई कष्ट नहीं दिया। इतनी पुण्यात्मा, किसी के आज तक कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं। और मैंने एक मंत्र दिया उनको, मैंने कि तुम राम 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 बस में जा रहे हो, मैंने कि राम 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 का जाप करते रहो करो, और दुकान पर भी बैठे रहो तो राम 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 का जाप करते रहो। उन्होंने, मैंने लगता है कम से कम 15 साल ये जाप किया, और 15 साल जाप का परिणाम कब मिला? जब मृत्यु हुई। इसमें लिखा है जिस आदमी की मृत्यु सुधर जाती है उसका जीवन सुधर जाता है, ये निश्चित है। क्यों? कि जब मृत्यु होती है आदमी की, जब 1000 बिच्छू काटने का दुख उसके शरीर में होता है, और वो मलमूत्र को त्याग कर देता है जब उसके प्राण निकलते हैं। लेकिन इनके प्राण कैसे निकले किसी को पता ही नहीं लगा, किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि इनके प्राण निकले। सुबह 4 बजे 5 बजे करीब इनको पता लगा होगा कि बाबूजी संसार में नहीं रहे। तो बताओ, और
और इससे ज़्यादा मृत्यु क्या हो सकती है। जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका सब जीवन ही सुधर गया। उसका पता लगता है इसने कितना पुण्य किया है, कितना दान किया है। इसी तरह आज देखो, जाना तो सबको है, इस दुनिया में सब नाशवान है, इसको मृत्यु लोक कहा गया है। जो भी चीज बन के तैयार हुई है, जिस जगह पर बैठे हो, इसकी भी तारीख निश्चित है। जो पुल बनता है ना, पुल, उसकी भी तारीख निश्चित हो जाती है, ये 100 साल तक रहेगा या 80 साल तक रहेगा। इसी तरह हमारी भी एक तारीख निश्चित है। जाना सबको है, लेकिन कैसे जाना है वो इन बाबूजी से सीख लेनी चाहिए, लाला जी हेमराज सिंह से सीख लेनी चाहिए कि कैसे नाम में शक्ति है, जो इस संसार की यात्रा बहुत अच्छी तरह पूर्ण करके वैकुंठ धाम को गए। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति करें। और हमारे लाला जी भी, केवल जी बैठे और माता जी सरोज जी बैठी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेवा करी। जब कोई बात होती, पंडित जी को बुलाओ, मेरे पास फोन आता, मैं जाता और उनको समझा के आता। वो पंडित मेरे थोला पाओ, मैंने कि थोला नाल कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके मन की शांति कि पंडित जी आ गए और मुझे कुछ ना कुछ बताए के जान ली। और उसके बाद जमा टल्ली भर गई। इन्होंने बहुत सेवा करी है। ऐसा पुत्र भी कोई कोई होता है इस संसार में, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसको किसी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं मत्था टेकने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा गर्भ पुराण में लिखा है। और माताओं में भी लिखा है, जिसका पति है उसको पति की सेवा करनी चाहिए, उसको कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं। ये शास्त्र कहता है। परमात्मा आपके अंदर बस रहे। आप देखो, जो मृग होता है, मृग की नाभि में तो खुशबू आती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उस खुशबू की दौड़ में वो जंगल में दौड़ता हुआ ढूंढता है। वो खुशबू आ कहाँ से रही है? उसकी नाभि में से। परमात्मा है कहाँ? आपके अंदर, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे, आप भटक रहे हो। और भटकने से परमात्मा मिलता नहीं है। आपके अंदर ही परमात्मा का वास है। इसी तरह आप बैठे हुए परमात्मा को आप यही घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो। जैसे बाबूजी ने प्राप्त किया परमात्मा, इसी तरह प्राप्त कर सकते हो। अब आप सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और उनकी आत्मा शांति के लिए मौन धारण करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति करें। ओम शांति शांति शांति। लाला जी आ जाए, आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, जो में फल पावे, दुख विनिशय मन का, स्वामी दुख विनिशय मन का, सुख संपत्ति गरिया में, सुख आनंदी गरिया में, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम मिले और न दूजा, प्रभु मिले और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख गलिकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति। केशव जमीनों में दयालु, केशव जमीनों में कृपालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरे,
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हर सेवा ओम जय जगदीश हरे। ਲਾਲਾ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੋ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਸੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਤਾ ਕੱਲਰਵਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨੀਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ IAPS IG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1992 ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜਕਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨੇਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सारे बैठे ने सारे भी बेनती सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वाले सारे अहुदेदार साहिबान बेनती आ जाओ क्योंकि शहर की बहुत वधिया संस्था जो बजुर्गों के बारे सोचती है बहुत बड़े पद्धर से भलाई के काम सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वालों किए जा रहे हैं। उस संस्था के प्रधान भी केवल गर्ग जी ने ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਕੇਪਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਪੀਰਖਾਨਾ ਜੀ ਬੜਲਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਕੇਪਲ
अग्रवाल पीरखाना बड़लाडा जी, पंचायती गौशाला बड़लाडा, आ जाओ संस्था के जिन्हें मैंबर साहब सारे बेनती है कि आ जाओ। इस तो बाद साडी संस्था माता कलर वाली मंदिर अते धर्मशाला कमेटी, जिथे बहुत ही वधिया शानदार पार्क ते हाल श्री कृष्णा मंदिर अते गौशाला कमेटी बड़लाडा। जेकर कोई संस्था रह गई तो नोट कर लो दूसरी बार। नेकी फाउंडेशन, अग्रवाल पीरखाना बड़लाडा, पंचायती गौशाला बड़लाडा, श्री कृष्णा गौशाला बड़लाडा। अपना IG वालों जो संदेश आया सी केवल गर्ग जी नूं, प्यारे गर्ग जी, तुहाडे पिता जी का अचानक मौत बारे सुन के बहुत अफसोस होया। सारे परिवार के मैंबरों को मेरे वालों हौसला दिता है। अज भोग की रस्म से आना सी, परंतु कुछ जरूरी उलझन कारण मैं अज नहीं आ सकता। मैं परिवार नाल दुख साझा करने लई जल्दी आवांगा। भगवान कृष्ण अगे बेनती है कि विछड़ी आत्मा को शांति बख्शे। जय माता। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दोस्तों, लाला हेमराज जी का जन्म 10 फरवरी 1933 ਨੂੰ ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ तक तरक्की करके सारे परिवार का मान वधाया। लाला जी बचपन तो ही धार्मिक प्रवृत्ति के मालक सन अते समाज सेवा के कामां विच अपना योगदान पाउंदे सन। बचपन तो ही बाबा परमानंद जी के वचनां अनुसार लोग भलाई हित के काम करते सन। इन्हां ने अपने जीवन विच ਬੋਹਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 4 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਏਵਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ समाज सेवा के काम करते आ रहे हैं अते किसी भी पहचान के यह मोहताज नहीं हैं। लाला जी प्रभु भगती विच लीन रहने वाले व्यक्ति सन अते जांदे जांदे उन्हां एक होर लोक भलाई का काम किया जो कि काबिले तारीफ है। एक साधारण परिवार नूं वित्ती आसरा दिंदे हुए अपनी बोहा विखे करियाने की दुकान का सारा सामान उसनूं सौंप के इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए। सही मायना विच एक कर्मयोगी सी लाला।
हेमराज जी। लाला जी नूं सलाम सलाम सलाम। परमात्मा उन्हां नूं अपने चरनां विच स्थान देवे। होना होता है जिनको अमर, होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना, औरों के लिए जीवन अपना, बलिदान वो करते ही आए, बलिदान वो करते ही आए। नमस्कार। मेरे पिता लाला हेमराज जी मिति 2 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਵਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।